Assembly. Moving on to next breaking news coming in. More trouble for India Alliance in Jammu and Kashmir. AAP Jammu and Kashmir unit seeks share in Lok Sabha polls 2024. AAP co-chairman Mehraj Malik says we want share in Jammu as well as in Kashmir. We have a reaction coming in. Listen in, viewers. के चुनाव अगर देखेंगे आप तो बहुत सारी सीटों पे जो है दावेदारी हो रही है। गठबंधन हो रहा है मोदी की सोच को रोकने के लिए। ये जिस किस्म का माहौल बना रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए इंडिया का गठबंधन बना है और गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है पूरे देश के अंदर। और उन चीजों को रोकने के लिए, मोदी को रोकने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को वैसे नहीं रोका जा सकता है। मोदी के खिलाफ लड़ने वाला ईमानदार का होना बहुत जरूरी है। अगर भाजपा सरकार के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है, उन्हें रोकना है, तो ईमानदार चेहरों को इलेक्शन में सामने लाना होगा। 12 साल से लगातार आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है और जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का विजन लोगों के हित में क्या है। बेसब्री से इंतजार हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू कब जम्मू कश्मीर में दिखेगा और लोग उस पर बटन दबाने का काम करेंगे। बस उसका इंतजार है कि हाईकमांड से क्या फैसला आता है। दिल्ली के अंदर शेयर है, पंजाब के अंदर शेयर है, और वहीं जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का भी शेयर होना चाहिए, कश्मीर से भी और जम्मू से भी। और इस बात की उम्मीद करेंगे, ईमानदार चेहरे हमारे पास हैं। सबसे बेहतर जो है आप देखेंगे कि जो लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे देश के अंदर, और मोदी सरकार की इस तानाशाही को रोकने का काम और उनके खिलाफ बोलने का काम, जम्मू कश्मीर के गरीब की आवाज को बुलंद करने का काम आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। और इसमें इंडिया अलायंस में भी दावेदारी होनी चाहिए। Gursimran is joining us live. Gursimran, more trouble over seat sharing in the India Alliance in Jammu and Kashmir. Bring us up to date with the latest developments here. See, this was something that no one was actually expecting, that the Aam Aadmi Party will make claim for their seat sharing in Jammu and Kashmir. Undoubtedly they are part of the alliance, but no one has expected, because what it was thought by the Congress Party or the alliance partners, that it will only be the National Conference, the PDP and the Congress Party that will have discussions on the alliance. But now the Aam Aadmi Party has come into frame, claiming that if they are one of the key pillars of the alliance that has taken place, why they are being ignored, and it is the aspiration of the people that they should not only contest from Jammu but also from the Kashmir Valley. They have also said that only the honest people that the Aam Aadmi Party has are capable of challenging and taking a head-on challenge with the ruling BJP government. That means that the Aam Aadmi Party leaders too have said that they have the on-ground leadership that is preparing themselves to contest the Lok Sabha polls. So if the things don't go well, it is quite possible now that Aam Aadmi Party will contest all 5 Lok Sabha seats on their own. This is what the possibility that the leadership in Jammu and Kashmir is showing. They are saying that if we can have a share in Delhi and Punjab, why not in Jammu and Kashmir if the alliance is to take place? So now this is really very concerning, at least at a time when the talks between the National Conference, the PDP and the Congress Party are expected to begin. We have many hurdles there also, because the Congress is trying to exert pressure on the political parties like PDP and NC by claiming their seat share in the Kashmir Valley, and NC has done the vice versa. They have said that we have won all 3 seats in the Kashmir Valley, and the Congress that got the vote in Rajouri and Poonch, it is their vote, and they intend to contest all those seats again. And now Aam Aadmi Party it was not a big alliance partner when it comes to Jammu and Kashmir. They have few of their DDCs, those who have won, but yes, it can dent the aspirations of the Congress, National Conference and PDP as an alliance if they were planning to come here. But yes, one thing is very clear, that Aam Aadmi Party is now in fray for Jammu and Kashmir as well, and the alliance that the opposition was trying to form is going to have more and more trouble in days to come. जब वो समय नजदीक आ जाएगा तब हेमंत सोरेन को भारी सिक्योरिटी में, ईडी की भारी सिक्योरिटी में विधानसभा लाया जाएगा और उस समारोह में उनको शामिल किया जाएगा। साफ तौर पे एक तस्वीरें आपको दिखा दे, पीछे
जो तमाम विधायक है वो बस में बैठ चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से बस की रवानगी होगी विधानसभा के लिए। देखिए तमाम जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उस बस के पास खड़े हैं और वो रूट डिस्कस कर रहे हैं, ड्राइवर के साथ रूट डिस्कस करके, और उसी रूट के जरिए यहाँ से बस को विधानसभा पूरी तरीके से सुरक्षित ले जाया जाएगा। साफ तौर पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से पहले जो सीएम ने डीजीपी को निर्देश दिए थे कि जो आप अपना पूरी तरीके से रूट डिसाइड कर लें कि इस रूट से उनको सुरक्षित ले जाया जाएगा और तमाम जो इंतजाम है वो पहले से कर ले। तो पूरी तरीके से यहाँ पे इंतजाम यहाँ पे पुख्ता दिखाई दे रहे हैं, जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी पुख्ता कर लिए गए। और साफ तौर पे आज एक बड़ा दिन है जेएमएम के लिए, चंपाई सोरेन के लिए, गठबंधन की सरकार के लिए भी बड़ा दिन है। जो आरोप लग रहे थे, जो अब जो होगा आप लोग देखिएगा, ही बाहर है, अंदर क्या होगा आप लोग भी अंदर रहिएगा, आप लोग देखिएगा क्या होगा। चंपाई सोरेन को मिलेगा विश्वास मत आपको मिल रहा है। वहाँ ले गया, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो उनकी सरकार है, तो फिर क्यों लेके भागे वो? उनका कहना है कि बीजेपी का चरित्र रहा है। कहाँ फंसा यार ये राजू, ये घूम फंस गया रहेगा वैसे बड़ी। आप लोग देखिएगा क्या होगा। अभी तो अब कुछ ही समय का तो बात ही है। जो हम लोग का विपक्ष का जो भूमिका होना चाहिए था, हम लोग भूमिका निभाएंगे और अपना जो पार्टी का निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। कल बैठक में रणनीति तैयार की गई, फ्लोर टेस्ट में क्या बातें को रखेंगे आप लोग? पर क्या स्ट्रेटजी बनी है? सरकार के गलत नीति के खिलाफ हम लोगों ने सदैव सदैव मुखर होकर बोले हैं, और अगर सदन में इस तरह का मामला है तो हम लोग उसका मुखर होकर बोलेंगे। सेंधमारी होगी? नहीं, इस तरह का कोई सेंधमारी बीजेपी कभी किया ही नहीं है, ना कभी करेगा। नहीं, ये बताइए आप लोग, हमारा एनसीपी का आज बहुत दिन पहले ही डिसाइड हो गया है, ठीक है, और हमारी पार्टी जो है एनडीए के साथ है। एनडीए का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग पूरी दृढ़ता से मजबूती से लागू करेंगे। वो तो फ्लोर में अपना बहुमत देंगे, आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति देखिए, सभी अभी बैठक है और एनडीए का भी बैठक है, उसमें हम लोग तय करेंगे कैसे क्या करना है। और जहाँ तक मेरी स्वयं की सोच है, यहाँ की जो स्थिति है पहले से जो है बहुत ही खराब स्थिति में है। झारखंड के लायक है, इसलिए उनको प्रोटेक्ट ये लोग कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई हैदराबाद ले जाने की? क्या जरूरत पड़ गई कि आप एक एक विधायक के साथ 5-5 लोगों को लगाइए, लिफ्ट तक में उनको अकेला नहीं छोड़िए? क्या जरूरत पड़ गई कि रूम में ही कैद करके खाना दीजिए? क्या जरूरत पड़ गई कि कल मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरी रात सर्किट हाउस में रहे? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तो आप स्पष्ट देख सकते हैं। आराम से निकलने दीजिएगा सर। आज तो आपको आज आपको चाहिए बाबूलाल जी, नमस्कार सर। क्या रणनीति बन रही है बाबूलाल जी? बाबूलाल जी हटिए ना, विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी का रूप है कि आप लोग खरीद रहे? अभी जा रहे हैं, अभी हम लोगों ने बैठक रखा है, ठीक है ना। अभी सब विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप, अपने विधायकों से डरे हुए हैं कि उनके विधायक कहीं इधर उधर ना भाग जाए, इसलिए वो आप लोग उन लोगों पर पहरा लगा रहे हैं। हम लोग विधायकों पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तभी ये स्थिति पैदा हुई है। वो सोच रहे हैं बीजेपी खरीद लेगी। अरे हम लोग के पास कहाँ पैसा कौड़िया लौटा है? कह रहे हैं केंद्र में सत्ता है, हर जगह सत्ता है, तो पैसे से खरीद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कोई गलत काम नहीं करती है। हाँ। हम डेमोक्रेसी को कोई दुकान नहीं बनाते हैं। जो लोग परिवार और पैसे के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं वो लोग ये सब धंधा करते हैं। वो कह रहे हैं 2.5 साल से अस्थिर कर रही है भाजपा। छोड़ो यार, ठीक है बाबूलाल का भेजो। द्वारा सरकार बनाने के लिए विश्वास मत पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों से, और यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।
बाबूलाल जी, तिवारी जी ऐसा मत करिए, उठा के फेंक दूंगा मैं, बता रहा हूँ धक्का वजह खुद से पूरा तोड़ के, ऐसा थोड़ी होता है। मैं लगाया हूँ धक्का खुद गया, हमेशा यही तरीका होता है आपका। पूरा क्या वाले घुस गए थे यार, वही चले गए बाबा। Well, we'll slip into a short break, but after the break, of course, newly formed Champai Soren government in Jharkhand will seek trust. Okay, we'll continue with this big breaking story for now. Newly formed Champai Soren government in Jharkhand to seek trust vote in assembly. Let us remind you, viewers, that Jharkhand assembly has 81 seats. And of course, the majority mark is 41. Now, JMM coalition has a comfortable majority of 48. So now it remains to be seen whether JMM Congress will be able to prove their majority. As you can see, the ministers, as you can see on your screen, there is a bus. कर रहे थे यहाँ चंपाई सोरेन, और साफ तौर पे आप देख सकते हैं 2 बसों में जो विधायक हैं वो बैठ करके इस सर्किट हाउस से निकल रहे हैं। लगातार ही गाड़ियों का काफिला है, लंबा काफिला ये है, और एक एक करके जो तमाम विधायक है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 बसों में यहाँ पे विधायकों को बिठा करके विधानसभा ले जाया जा रहा है। आज बड़ा दिन है चंपाई सोरेन के लिए भी, जेएमएम के गठबंधन की सरकार के लिए भी। आज ये तय हो जाएगा कि चंपाई सोरेन की सरकार बहुमत में बन पाती है कि नहीं बन पाती है, क्योंकि पूर्ण रूप से वो बहुमत साबित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। विधानसभा का 2 विशेष सत्र बुलाया गया है, 2 दिवसीय, और साफ तौर पे सत्र के पहले दिन उन्हें विश्वास मत लाना है और विश्वास मत ला करके पूर्ण रूप से अपना बहुमत सिद्ध करना है। तमाम जो विधायक हैदराबाद गए थे वो कल देर रात वापस आ चुके हैं और रांची के इसी गेस्ट हाउस में रुके थे, और अब फिलहाल वो 2 बसों में बैठ करके विधानसभा के तरफ यहाँ से निकल चले हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो गाड़ियों का काफिला है वो काफी लंबा है। बसों में बैठ करके विधायक गए, और तमाम जो सुरक्षा के यहाँ इंतजाम किए हैं काफी पुख्ता की गई है। देखिए, तमाम जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं वो काफी बड़ी संख्या में है, लंबी संख्या में तमाम जो गाड़ियां हैं एक एक करके बाहर निकल रही है। और देख लीजिए, काफी लगभग 50 से ज्यादा गाड़ियां हैं यहाँ पर, जो एक एक गाड़ियों में कई सारे अधिकारी बैठे हैं, और तमाम जो गाड़ियां हैं वो विधानसभा की तरफ जाती हुई